बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, जब कलयुग खत्म हो जाएगा, जब ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तब भविष्य बद्री का रास्ता खुलेगा। ये चमत्कार तो होता ही है। अगर आदमी आप आए, कभी बार यहाँ पर प्रकाश दिखाई देता है, एकदम रात के टाइम एकदम प्रकाश और ढोल नगाड़े बजते हैं। जिस बारे में हम सुनते आ रहे थे उसका एक पुख्ता सबूत हमको मिला है, यानी भविष्य बद्री है, और अगर है तो आपके सामने होगा। શું કોઈ ધામ પોતાની જાતે જ ગાયબ થઈ શકે? શું ભગવાન એક મંદિર છોડીને બીજે પ્રગટ થઈ શકે? આજના સમયે આ દાવો કોણ માનશે? પરંતુ સ્કંદ પુરાણમાં કહેવાયું છે, નારદ સંહિતામાં ઉલ્લેખ છે કે આવું થશે, ટૂંક સમયમાં થશે। ભગવાન વિષ્ણુ બદ્રીનાથ ધામને છોડીને બીજે પ્રગટ થશે। બદ્રીનાથ ધામ ગાયબ થશે અને હિમાલયની ગોદમાં નવું ધામ પ્રગટ થશે, જેને પુરાણોમાં ભવિષ્યનું બદ્રીનાથ કહેવાયું છે। पुराणों में लिखा भी है, कहते भी है कि जब नर नारायण पर्वत बंद हो जाएगा, बद्रीनाथ बंद हो जाएगा, एकदम जाने के रास्ता नहीं रहेगा, यहाँ पर भगवान स्वयं अपना प्रकट रूप न्यौछावर कर देगा। कलाई जिस दिन विग्रह से अलग हो जाएगी तो बद्री विशाल जाते समय जो जय विजय पहाड़ है वो मिल जाएंगे, तो बद्री विशाल जी का रास्ता अगम्य हो जाएगा। फिर यहाँ से भविष्य बद्री में जो विग्रह प्रकट हो रहा है, भगवान बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। जब ये वहाँ बंद हो जाए यार, भविष्य बद्री खुला हो जाएगा। પરંતુ ભવિષ્યનું બદ્રીનાથ છે ક્યાં? કયા પર્વત પર છે? કઈ દિશામાં છે? वहाँ ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा होगा, बादलों में छुपा हुआ है, यही भविष्य बद्री है। અમે નીકળ્યા પુરાણોની આ અદ્ભુત ભવિષ્યવાણીને શોધવા, એવા દ્રશ્યો શોધવા જે ક્યારેય સામે નથી આવ્યા। એક ધામ જેનો પાયો આદિ શંકરાચાર્યએ નાખ્યો હતો, જ્યાં ભગવાન વિષ્ણુ સ્વયંભૂ પ્રગટી રહ્યા છે। भविष्य बद्री में पिछले कई सालों से एक गुफा में एक नई मूर्ति प्रकट हो रही है, जो अभी भगवान नारायण का स्वरूप में पूरे स्वरूप में आ चुकी है। जब आया था तब इतनी बड़ी मूर्ति थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अब तो इतनी बड़ी हो गई। જ્યાં ભગવાનની આરતી જાતે જ થાય છે। જ્યાં સમય સાથે એ દરેક પુરાવા મળી રહ્યા છે, જેનો ઉલ્લેખ સ્કંદ પુરાણમાં છે। તો આજે જઈએ ભવિષ્યના બદ્રીનાથની શોધમાં। જે પહેલી વાર પુરાણોના પાનામાંથી નીકળીને સામે આવવાની છે। નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ઝરણા। બદ્રીનાથ ચાર ધામો પૈકી એક। આ ધામની કહાની તો બધા જ જાણે છે, પણ ખૂબ જ ઓછા લોકો જાણે છે કે બદ્રીનાથ ધામને લઈ પુરાણોમાં એક ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે। સ્કંદ પુરાણમાં યુગો પહેલા મહર્ષિ વેદવ્યાસે લખ્યું હતું કે કળિયુગમાં બદ્રીનાથ ધામ પોતાની જગ્યાએથી અચાનક ગાયબ થઈ જશે અને તે સમયે હિમાલયના ખોળે એક નવું ધામ પ્રગટ થશે, જેને પુરાણોમાં ભવિષ્ય બદ્રી નામ આપવામાં આવ્યું છે। કેટલાક વિદ્વાનોએ દાવો કર્યો કે જે ધામને લઈ પુરાણોમાં લખ્યું છે ત્યાં એક ધામ પ્રગટ થઈ ચૂક્યું છે। ત્યાં એક શિલા પર ભગવાન વિષ્ણુનો અક્ષ પણ ઉભરી રહ્યો છે। ત્યાં એવી જ ઘટનાઓ ઘટી રહી છે જે ભવિષ્યના ગ્રંથોને લઈ લખવામાં આવી છે। આજે અમારી ટીમ ભવિષ્યના ધામને શોધવા માટે નીકળશે।
દેશના 4 ધામમાંથી એક બદ્રીનાથ ધામ. ભગવાન બદ્રીનારાયણના ધામ તરીકે આપણે આજ મંદિરને ઓળખીએ છીએ. પરંતુ શું તમે જાણો છો, હિમાલયમાં વધુ એક બદ્રીનાથ ધામ છે. આ બદ્રીનાથ ધામ એક સમયે ગાયબ થઈ જશે. અહીં રખાયેલી ભગવાન વિષ્ણુની પ્રતિમા એ જ બીજા બદ્રીનાથ ધામમાં પ્રગટ થશે, જે છે ભવિષ્યનું બદ્રીનાથ. ત્યારે લોકો ભગવાન બદ્રીનાથના દર્શન માટે અહીં જ જશે. વિશ્વાસ નથી આવતો ને? અમને પણ નહોતો આવ્યો. પરંતુ વર્ષોથી ધર્મગ્રંથોનો અભ્યાસ કરનાર ધર્માચાર્યોના કહેવા મુજબ આ દાવો નથી પણ ભવિષ્યવાણી છે. સ્કંદ પુરાણ અને નારદ સંહિતા મુજબ ધરતી પર કુદરતી આફતો આવશે અને મોટું કુદરતી પરિવર્તન થશે, જેને પગલે નર અને નારાયણ પર્વત એક થઈ જશે અને બદ્રીનાથ જવાનો રસ્તો બંધ થઈ જશે. ત્યારે ભગવાન બદ્રીનાથના દર્શન ભવિષ્યના બદ્રીનાથમાં થશે, જ્યાં મૂર્તિ स्वयंभू प्रकट से. अब आप सोच रहे होंगे कि भविष्य बद्री क्या है. असल में जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, जब कलयुग खत्म हो जाएगा, तो बद्रीनाथ का एक नया रूप आपके सामने आएगा और वही भविष्य बद्री है. ये भविष्य बद्री क्या है, इस भविष्य बद्री की हकीकत क्या है और आखिर इस भविष्य बद्री का चमत्कार क्या है, यही जानने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की है. तो चलिए इस धाम से आगे चलते हैं और चलते हैं भविष्य बद्री की तरफ. બદ્રીનાથમાં અમે ભવિષ્યના બદ્રીનાથનો રસ્તો શોધી રહ્યા હતા, જે આગળ વધવાની દિશા બતાવે. અમારી મુલાકાત એક ધર્માચાર્ય સાથે થઈ, જેમની પાસે ભગવાન વિષ્ણુની માહિતી હતી. यहाँ पर पुराण जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण ने एक एक पग नाप करके लिखा है इस भूमि के संबंध में. जब बद्रीनाथ अगम्य हो जाएंगे तो उसके बाद लोग भविष्य बद्री में जाकर बद्रीनाथ के दर्शन होंगे. अभी भविष्य बद्री में एक मूर्ति, एक शिला में एक मूर्ति स्वयं प्रकट हो रही है. मुझे मेरे जीवन का बहुत लंबा अंतराल नहीं है, परंतु इन 60-70 सालों में मैंने जो सुना, तब जो था वो कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ आ गया है. तो इसी प्रकार से वहाँ पर एक शिला में भगवान बद्रीनाथ का श्री विग्रह बन रहा है. એટલે કે ભવિષ્યનું બદ્રીનાથ બનવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે. એક શિલા સ્વયંભૂ જમીનની બહાર નીકળી રહી છે. દાવો છે કે તેમાં ભગવાનની મૂર્તિ ઉપસી રહી છે. અમે જોશી મઠ તરફ આગળ વધ્યા. રસ્તામાં અમે નરનારાયણ પહાડ જોયા, જેનો ઉલ્લેખ સ્કંદ પુરાણમાં પણ છે. तो आखिरकार हम सिंह देवता के उस मंदिर तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में बद्रीनाथ में हमें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली. क्या वाकई कोई भविष्य बद्री है? क्या वाकई कोई ऐसी जगह है जो बद्रीनाथ के खत्म होने के बाद, यानी जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तो एक बद्रीनाथ और हमारे सामने प्रकट होगा? लोगों ने बहुत सारी बातें बताई और उन सारी बातों का सीधा ताल्लुक जोशीमठ के इसी मंदिर से है, क्योंकि यहीं पर नरसिंह देवता की वो मूर्ति है जिसकी भुजा, जिसका हाथ लगातार पतला होता जा रहा है. और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही ये हाथ टूट जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, वैसे ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाएगा जो बद्रीनाथ तक जाता है. क्या है इस मूर्ति की हकीकत और क्या वाकई कोई ऐसी मूर्ति है जिसका हाथ लगातार छोटा होता जा रहा है? और क्या है भविष्य बद्री की हकीकत? यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं. અમે નરસિંહ દેવની એ મૂર્તિ જોવા ઈચ્છતા હતા, તેને કેમેરામાં કંડારવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં કેમેરો લઈ જવાની પરમિશન ન મળી. જો કે પૂજારીએ કહ્યું કે મૂર્તિનું કાંડું વાળ જેટલું પાતળું થયું છે. वज्रासन में भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दूसरा हाथ भगवान का बिल्कुल सामान्य है. और क्योंकि हम रोज अभिषेक करते हैं, ये हमें सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से, तो वो हाथ दूसरा जो है बिल्कुल बाल के नोक के बराबर जो है
नीचे जो भगवान एक जांग जो है ज़मीन में से रखी हुई है, उस पर जो है हाथ बिल्कुल पतला है, बिल्कुल बारीक की नोक के बराबर। तो हम वहाँ पर सावधानी से भगवान का अभिषेक भी करते हैं और एक मन में एक भय जैसे भी रहता है कहीं खंडित ना हो जाए। કોઈ માને કે ના માને, પરંતુ જોશી મઠના લોકો આ કથાને માને છે। આ સફરમાં અમારો આગળનો પડાવ હતો તપોવન, પરંતુ સવાલ એ હતો કે શું આ રીતે અમે ભવિષ્યના બદ્રીનાથમાં પહોંચી શકીશું? જો પહોંચ્યા તો ત્યાં શું એ શિલા મળશે? પરંતુ તપોવનના પહાડે અમને મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા। જો કે એક સ્થાનિક પૂજારીએ મદદ કરી। આ પૂજારીના કહેવા મુજબ તપોવનથી 12 કિલોમીટર દૂર રીંગી ગામથી ભવિષ્યના બદ્રીનાથનો રસ્તો છે। यहाँ पे जब आया था तब इतनी बड़ी मूर्ति थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अब तो इतनी बड़ी हो गई है। अच्छा, तो ये तो चमत्कार है। हाँ, चमत्कार है ये। तो जैसा बद्रीनाथ में कुंड है वैसा ही कुंड यहाँ भी है। हाँ, वैसे कुंड है। गर्म पानी का। तो क्या करें, पहले यहाँ जाएं? हाँ, यहाँ भी है और ये गर्म कुंड और आगे है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा। तो वहाँ जो है पीली मिट्टी निकलती है। अच्छा। ખરેખર ભવિષ્યના બદ્રીનાથની 10 કિલોમીટર પહેલા એવો ગરમ પાણીનો કુંડ મળ્યો જે આજના બદ્રીનાથ ધામ પાસે છે। मैंने भी बहुत सारे जल स्रोत इस तरह के देखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बॉइलिंग वाटर मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल उबल रहा है ये पानी और आप इसमें हाथ तो क्या उंगली भी टच करेंगे तो जल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म है। मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता, लेकिन 100 डिग्री से तो ऊपर ही है क्योंकि पानी बॉईल करता हुआ आंखों से दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल उस तरह से जैसा बद्रीनाथ में है उसी तरह का स्वरूप, और लोग यही कह रहे थे कि जैसा जैसा बद्रीनाथ में है बिल्कुल सेम आपको भविष्य बद्रीनाथ में मिलता जाएगा, वही सब होता जा रहा है। और जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा तो वही भविष्य बद्री होगी जहाँ पर लोग जाएंगे। આખરે જેમ તેમ કરીને અમે રીંગી ગામ પહોંચ્યા, જ્યાં અમે પહેલી વાર ભવિષ્યના બદ્રીનાથનું બોર્ડ જોયું। तो बद्रीनाथ का रास्ता तो आपने देखा होगा, लेकिन जो अब मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। ये रास्ता है भविष्य बद्री का। जब कलयुग खत्म हो जाएगा, जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तो आप किस रास्ते पर आएंगे? इसी रास्ते पर आएंगे जनाब। यही है रास्ता भविष्य बद्री का, और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, उसके आगे चढ़ाई है। क्या मिलेगा इस रास्ते में पता नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि इस सफर को हम पूरा जरूर करेंगे। અમે મંજિલથી 7 કિલોમીટર દૂર હતા। જે બાદ મળશે ભવિષ્યનું બદ્રીનાથ, જેનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં છે। પરંતુ તેના વિશે સ્થાનિકો સિવાય કોઈને જાણ નથી। કેવું હશે ભવિષ્યનું બદ્રીનાથ? કેવો હશે તેનો ચમત્કાર? જો આ મંદિર મળ્યું તો પણ શું પુરાણોની ભવિષ્યવાણી સાચી છે? તો આ સાથે જ અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। જે ધામને ભવિષ્યનું બદ્રીનાથ કહેવામાં આવે છે તે હવે બહુ દૂર નથી। હજુ પણ અમને તે ભવિષ્યવાણી પર પૂરી રીતે વિશ્વાસ નહોતો। કેટલાક ગામના લોકોએ પોતાના વિસ્તારને વિખ્યાત કરવા માટે તો આ સમાચાર નથી ફેલાવ્યા ને। જે હોય તે હવે થોડા સમયમાં જ દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જવાનું હતું। તપોવનના આ રીંકી ગામથી અમે ભવિષ્ય બદ્રીની શોધમાં આગળ વધ્યા। અમે ભગવાન વિષ્ણુના એ ધામને જોવા ઈચ્છતા હતા। આ ધામ ખરેખર છે કે નહીં, અને છે તો કઈ હાલતમાં છે? ત્યાં જ અમને રસ્તામાં એક બોર્ડ દેખાયું। तो भविष्य बद्री का एक प्लाक यहाँ पर लगा हुआ है। किसके लिए लगा है पता नहीं, क्योंकि कोई आता जाता तो है नहीं। और पहली लाइन यही लिखी है कि तपोवन से भविष्य बद्री तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है।
और 2744 मीटर की ऊंचाई पर हम इस वक्त हैं। अब इसे फुट में मैं आपको बता सकता, लेकिन मेरा इंटरनेट फ़ोन ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन हम कितनी ऊंचाई पर हैं आप अंदाज़ा लगाइए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से हैं और हम बिल्कुल यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बादल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने ही तैर रहा हो। સુબાહી ગામમાં અમને રહેવાની જગ્યા મળી ગઈ। हम लोग सुबह निकले थे लेकिन बारिश की वजह से पहुंच अब पाए हैं। अच्छा, और भविष्य बद्री जाना है हमको। सर आज तो नहीं जा पाओगे आप। हाँ। आज आप यहीं रुक जाओ। आप हमारे अतिथि हो आज के लिए। हाँ। कल के लिए आपका प्लान, आज मौसम भी खराब है। સવારે અમે ભવિષ્ય બદ્રીનાથને લઈને લોકો સાથે વાત કરી। અહીં પણ શિલાનો ઉલ્લેખ થયો, પરંતુ अलग अंदाज में। तो शिला एकदम ऐसी थी, चट्टान एकदम प्लेन। इस हाथ पे अगर माला डाले तो नहीं टिकेगी, अगर छेद करना पड़ता भी टिकेगी। तो मेरे देखे देखे भगवान उसके नीचे जहाँ पर भगवान निकल रहे कुंड है, वहाँ पर जल आता है। अब भगवान बीचों बीच उभर के आ रही। पहले तो प्लेन था, ऐसा पत्थर प्लेन था, कपड़े नहीं टिकते थे, माला नहीं टिकती थी। अब भगवान बीचों बीच अपने स्वयं भू प्रकट हो रही है। किसी ने उस पर कोई हथियार नहीं लगाया, अपना आप। हमारे देखे देख भगवान काफी बड़े हो गए, माला 8-10 माला टिक सकती है। परंतु अमने वधारे आश्चर्य त्यारे थयुं ज्यारे अमे मंदिरमां थता चमत्कार विषे सांभळ्युं। यहाँ पे देखे तब तक एकदम प्रकाश हो रहा है और घंटी शंख बज रहे हैं, शंख घंटी की आवाज आ रही है, ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है। उन्होंने सोचा भाई कोई मंदिर पे है। वो आए मंदिर में, देखा यहाँ कुछ नहीं, ना उजाला ना कुछ। कम से कम मतलब 50 मीटर आगे से उन्होंने तो वहाँ पे पूरा प्रकाश देखा है। भविष्य बद्रीनाथ में आ चमत्कारनी बात अमे पहली वार सांभळी, पण आ वात केटली साची छे ते तो त्यां पहोंचीने ज खबर पड़शे। સુબાહી ગામથી ઉપર પહોંચીને હિમાલયના શિખરો સ્પષ્ટ દેખાતા હતા। બે કિલોમીટરના ચઢાણ પછી આખરે ભવિષ્ય બદ્રીનાથનો ગેટ દેખાયો। જે ધામ વિશે હજુ સુધી માત્ર પુરાણોમાં જ ઉલ્લેખ હતો, તે ભવિષ્ય બદ્રીનાથ અમારી સામે હતું। જો કે તેની ભવ્યતા આજના બદ્રીનાથ જેવી નથી, પરંતુ પુરાણોના પાના પર વંચાયેલા એક ધામને શોધવામાં સફળ થયા હતા। तो आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, वो भविष्य बद्री मंदिर जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे राज हैं। क्या वाकई एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो बद्रीनाथ का रास्ता बंद होने के बाद अपने आप प्रकट हो जाएगा? क्या वाकई एक ऐसी शिला मौजूद है जो अपने आप धरती से बाहर आ रही है? क्या वाकई कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं जिनको देखकर सुनकर भी बिलीव नहीं किया जा सकता? क्या इस मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं? क्या यहाँ पर शंख की आवाज अपने आप आने लगती है? खैर, इन सारे सवालों के जवाब मौजूद है इस भविष्य बद्री मंदिर में। आइए। मंदिरनी अंदर मोटी शिला हती, नीचे जलकुंड हतो અને આ એ જ શિલા છે જે સ્વયંભૂ હોવાનો દાવો થાય છે। तो भविष्य बद्री के जिस चमत्कार की बातें हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे वो अब हमारे सामने है। आप देखिए यहाँ पर ये शिला दिखाई दे रही है। अब जैसा कि मैंने सुना था, अब मुझे पता नहीं, जैसा भी लोगों ने बताया कि शिला पहले बिल्कुल प्लेन थी, यहाँ पर ये आकृति नहीं थी। और अब आप देख सकते हैं कि एक पूरी आकृति उभर कर सामने आ गई है, एक चेहरा सा फॉर्म होने लगा है, हाथ दिखाई देने लगे हैं, पैरों की भी बात हो रही है। और जो लोगों ने बताया था कि पहले ये यहाँ था और अब बढ़ते बढ़ते ये देखिए
कि कितनी हाइट पर पहुंच चुकी है ये आकृति जो उभर रही है इसके ऊपर। और जिस कुंड के बारे में बात हो रही थी कि नीचे पानी मौजूद है, वो पानी भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये पानी यहाँ पर पहाड़ की बहुत ऊंचाई है, आपको पता है कितने घंटे हमको लगे हैं, कल से हम चले हुए हैं तब यहाँ पहुँचे। इतनी ऊंचाई पर ये पानी अपने आप यहाँ पर मौजूद है। ये पानी कोई डालता नहीं है इस कुंड के अंदर, ये पानी लगातार यहाँ पर बना रहता है। तो ये आकृति जैसा लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि 50, 60, 70 साल पहले जब इस आकृति के बारे में पता चला था, इस जगह के बारे में पता चला था, तब ये इतनी प्लेन थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डालते थे तो वो टिकती नहीं थी, वो नीचे गिर जाता था। आप माला नहीं पहना सकते थे, आप कोई कपड़ा नहीं रख सकते थे। लेकिन इस वक्त आप देखिए पूरा कपड़ा यहाँ डाला हुआ है, माला डाली हुई है, ये जनेऊ डाला हुआ है, ये सब यहाँ पर डाला हुआ है और आराम से इसके ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि पूरा सर का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। पूरा सर का फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुका है और ये आकृति अपने आप बड़ी होती जा रही है। એટલે કે ભવિષ્યના જે બદ્રીનાથનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં છે, જે શિલા વિશે ગ્રંથમાં લખાયું છે, તે હકીકતમાં છે અને અમારી આંખો સામે હતું। ભલે આ ચમત્કારનો દાવો સાબિત ન થઈ શક્યો હોય, પરંતુ ભવિષ્ય બદ્રીનું ધામ એક હકીકત છે। હવે સ્કંદ પુરાણની આગાહી કેટલી સાચી પડશે તે તો કોઈ નહીં કહી શકે, પરંતુ લોકો માને છે કે આ સ્થળનો આવનાર સમય સાથે કોઈને કોઈ સંબંધ જરૂર છે। તો આ સાથે જ અમારી વિશેષ રજૂઆત અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।